Hello friends, now this is problem number 3.64 from the IE Erudov electromagnetism. The text of the problem, that is the language of the problem, is written. I will just explain the problem. We have uncharged conducting, second line, we have uncharged conducting spherical layer. So here we have some uncharged conducting spherical layer whose inside and the outside radii are R1 and R2. So this is my conducting layer having inside radius R1 and the outside radius R2. R1 and R2. Notice that this is our conducting layer. This whole layer is conductor. Now there is a point charge written in the first statement. A point charge small q is located at a distance small r from the center O. Let O be the center point, and there is a point charge small q inside this layer at a distance of small r. This is small r. So we have a point charge small q inside this layer. Radius R1 and R2 given है, and find the potential at point O. Question is language is uncharged conducting spherical layer. That means इस कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं है. So we have only a single positive charge. We have single positive point charge small q at a distance of small r. This conductor is in neutral itself. Now we have to find the potential at point O. पोटेंशियल एट पॉइंट ओ निकालने से पहले आपको ये समझना होगा कि बिकॉज ये कंडक्टिंग मटेरियल आप लेके चल रहे हो एंड यहाँ पर अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू है तो इस पॉइंट चार्ज क्यू का एक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, विच मीन्स इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से चार्जेस इंड्यूस किए जाएंगे और जो कंडक्टर का इनर सरफेस है, द इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर विल बी induced by the negative charges. The inner surface of conductor will be induced by the negative charges minus of q, and the outer surface of the same conductor will be induced by positive charge plus of small q. So plus q and minus q ये होंगे हमारे induced charges, plus q outer surface पर and minus q inner surface पर. Now the potential at point O. Potential at point O. Notice potential at point O can be written as potential at point O by the point charge q plus the potential at the same point O by induced charge minus q, and then potential at the same point O by इंड्यूस चार्ज प्लस क्यू. ये हमारे आंसर्स आएंगे पोटेंशियल्स की. पोटेंशियल एट ओ जब निकालेंगे तो पोटेंशियल एट ओ विल बी बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल एट ओ विल बी बिकॉज ऑफ द टू इंड्यूस चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. पोटेंशियल वन बाय वन अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एट ओ बाय द पॉइंट चार्ज क्यू, पोटेंशियल एट ओ बाय द पॉइंट चार्ज क्यू अगर बात करें तो this first term is equals to q is a point charge because of which the potential at point O is simply k q divided by r. Now because of this minus q charge, potential at the point O. So notice that minus q charge is on a spherical surface. Minus q charge is on a spherical surface, and therefore the potential at point O will be k, its charge is minus q and divided by r1. And now potential by this plus q charge. So plus q charge is also on a spherical surface of radius r2, and if plus q is on a spherical surface whose radius is r2, then the potential at the center of that spherical surface will be k उसका charge q and divided by r2. Now the total potential at point O
द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O is my answer, and that is K small q divided by R minus K small q divided by R1 and plus K small q divided by R2. This is my answer. K small q by R1 minus K small q by R capital R1 plus K small q divided by capital R2. ना एक चीज़ यहाँ पर एक डाउट आ सकता है किसी को भी, हम में से किसी के साथ भी ये डाउट हो सकता है, और वो डाउट ये कि जो ये माइनस क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एंड ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं होगा बिकॉज जो ये चार्ज इनसाइड द कैविटी है, दैट मीन्स ये स्मॉल क्यू चार्ज वो इस वाले वॉल के ज़्यादा क्लोज है और इधर वाली वॉल से ज़्यादा दूर है। यानी कि जो इंडक्शन होगा इस चार्ज क्यू की वजह से, जो इंडक्शन होगा उस इंडक्शन में यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे वो हाई डेंसिटी के होंगे, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करेंगे वो थोड़े से लो डेंसिटी के होंगे। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस माइनस क्यू चार्ज नॉन यूनिफॉर्म तरीके से होगा। सो मन में एक क्वेरी ये आती है कि अगर ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो क्या हम पॉइंट O पर पोटेंशियल की वैल्यू K माइनस क्यू बाई R1 पुट कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या ये रिज़ल्ट वैलिड है? और अब इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? हाँ, ये रिज़ल्ट वैलिड है। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सपोज यू हैव सम चार्ज Q1, वी हैव अनदर चार्ज Q2, वी हैव वन मोर चार्ज से Q3, एंड देयर इज अ पॉइंट P at some distance R1 from Q1, at some distance R2 from Q2, and at some distance R3 from Q3. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो पोटेंशियल एट P लिखा जाएगा K स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस K स्मॉल Q2 डिवाइडेड बाई R2 एंड प्लस K स्मॉल Q3 डिवाइडेड बाई R3. एंड नाउ आई एज्यूम दैट R1 इक्वल्स टू R, R2 इक्वल्स टू R and R3 equals to R. That means all the three charges are at the same distance from the point P. And अगर ऐसा है कि R1, R2, R3 सबकी वैल्यूज़ बराबर हैं तो पोटेंशियल एट P K, if R1, R2, R3 are equal then it is K by R, and then Q1 plus Q2 plus Q3 which is Q net total charge. What does it mean? If you have charges Q1, Q2, Q3 and all those charges are at the same distance from a point P, if we have charges and all the charges are at the same distance from point P, then the potential at point P is simply K divided by that distance and total charge. और इसमें ये कहीं मैटर नहीं करता है कि Q1 ज़्यादा है या Q2 ज़्यादा है या फिर Q3 ज़्यादा है। सिंपली क्या मैटर करता है इस केस में? डिस्टेंस क्या है और टोटल चार्ज क्या है। सो इट इज़ K बाई R इंटू Q नेट, बट कंडीशंस है R1, R2, R3 दे ऑल आर इक्वल। सो इवन दो माइनस क्यू चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ पर, स्टिल इस माइनस क्यू चार्ज के जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, मतलब जितने भी छोटे छोटे पीसेस आप डिवाइड करोगे, माइनस क्यू चार्ज ठीक है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लिया, लेकिन हम पोटेंशियल सेंटर पे निकाल रहे हैं, और अगर हम पोटेंशियल सेंटर पे निकाल रहे हैं तो वो यहाँ वाले चार्ज से भी डिस्टेंस R होगा, यहाँ वाले चार्ज से भी डिस्टेंस R होगा, यहाँ वाले चार्ज से भी डिस्टेंस R होगा। यानी इस सरफेस के किसी भी पॉइंट से पॉइंट O का डिस्टेंस जो है वो R है। तो इस सरफेस पर जितना भी चार्ज है वो हम अपने Q नेट की जगह रखेंगे, और Q नेट की जगह रखेंगे तो हमारे लिए टर्म आएगा माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते तो प्रॉब्लम होता बिकॉज वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप एक ऐसा यूनिक पॉइंट लेते हो जो आपके गिवन चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पे है, सो इस माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन इस स्फेरिकल सरफेस पे होगा, और इस स्फेरिकल सरफेस का किसी भी पॉइंट को अगर आप देखते हो तो वो सेंटर O से सेम डिस्टेंस कैपिटल R1 पे होगा। एंड अगर मेरा कोई पॉइंट सारे चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर हो तो हम वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू K अपॉन डिस्टेंस इनटू टोटल चार्ज कर सकते हैं। और इसी लॉजिक से इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट O पर जब पोटेंशियल लिखना होगा तो इट इज़ K, और इस माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट O से डिस्टेंस R1
एंड टोटल चार्ज जो इस सरफेस पर एग्जिट करेंगे क्यू नेट की जगह पर, वो हमने रखा है माइनस ऑफ क्यू, एंड दिस इज़ माई फाइनल आंसर। स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है इसको, दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया, सो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बताओ, मैं उसको फर्दर क्लैरिफाई करूँगा।